Assalamu alaikum. This is Professor Muhammad Hassan Khan, and today we are going to start lecture number 5 of week 5 of the course Retail Supply Chain Management. In this chapter, we have to learn about warehouse layout and design. In this, we are going to learn in depth about what the warehouse is, what the need of the warehouse, types of warehouse, and a lot of things. Just have a quick view on the topics that we have to cover. We're going to go through the introduction, importance of the warehouse, key factors affecting the warehouse, types of warehouse layout, a warehouse designs principle, inventory management strategies, role of technology in modern warehouse. So this is the most important chapter regarding to your supply chain management and also important for your paper point of view. So this is the warehouse, a picture, a small picture of the warehouse. You can see how the warehouse looked like in the reality. This is the real picture of the warehouse. Over here you can see a lot of stock placed in the different floors. Over here it have one, two, three, four, five, six floor warehouse. It's just a picture. Just have a real picture of the warehouse. This is the introduction. What the warehouse introduction says to us. A well planned warehouse layout is essential for maximizing space, improving efficiency, and reducing operational cost. It ensures a smooth flow of goods from receiving to storage, picking, and shipping, minimizing delays, and errors. Effective layout incorporate clear pathway, optimize shelving, and automation technologies like warehouse management system. Okay, जी इसके अंदर I've highlighted few most important points which are like you can see over here like maximizing space. Warehouse के अंदर एक अगर we talk about a well planned warehouse layout, so what it give to us maximizing space. अगर आपका warehouse planned है, managed है, तो वहां पे आपको spacing की भी अच्छी खासी जगह मिलेगी. अगर if the warehouse is not well planned, things are not placed on the proper shelving, चीजें आगे पीछे हैं रखी हुई हैं, तो क्या होगा वो आपकी चीजें क्या होंगी, जगह ज्यादा ऑक्युपाई करेंगी. As you can see in the picture, this is a well planned warehouse. Everything is placed properly and they are put in the racks. ठीक है, ये सारे के सारे प्रॉपरली चीज़ों में रखी गई हैं और प्रॉपरली तरीके से मैनेज होके और अकॉर्डिंग टू देयर यू कैन से दैट फीफो लीफो वो तो एक बात की बात है. तो मतलब एक प्रॉपरली यू कैन से वेरी नीट एंड क्लीन और यहाँ पे कोई इतना चीज़ें रशेस मतलब पड़ी हुई नहीं है, प्रॉपरली मैनेज है. तो अ वेल प्लान्ड वेयरहाउस लेआउट इज एसेंशियल फॉर उसके लेआउट के लिए बहुत ज़रूरी है. मैक्सिमाइजिंग स्पेस की स्पेस बड़ी रहे, बड़ी हो, बिग हो, ठीक है, मैक्सिमाइज ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास स्पेसिंग हो, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट. तो क्या क्या हो साथ में, ऑपरेशन कॉस्ट भी क्या हो, कम से कम हो. ठीक है, इट इंश्योर्स अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम रिसीविंग टू स्टोरेज. इट इंश्योर्स अबाउट स्मूथ फ्लो. अगर वेल प्लान होगा तो उसका स्मूथ फ्लो होगा ऑफ गुड्स का, चीज़ों का, रिसीविंग टू स्टोरेज, लाइक जो भी चीज़ रिसीव हुई रिसीविंग एंड से कहाँ स्टोरेज तक, उसमें स्मूथ फ्लो होगा. ठीक है, पिकिंग एंड शिपिंग, पिकिंग करने भी आसान होगी और उसको शिपिंग करने में भी आसानी होगी. तो इससे क्या होगा, मिनिमाइजिंग डिले. व्हाट हैपन विद दिस, आपके जो भी डिलेज हो रहे हैं, आपके लाइक चीज़ें प्रॉपरली मैनेज हुई हैं तो उसमें कोई डिले नहीं आ रहा. कोई भी चीज़ को पिक करने में, उसको स्टोर करने में, उसको रिसीव करने में, उसको शिप करने में क्या नहीं आ रहा, डिले नहीं आ रहा और कोई एरर नहीं आ रहा. ठीक है, तो दिस इज अ वेल प्लान्ड, वी टॉकिंग अबाउट द वेल प्लान्ड warehouse. Okay, effective layout incorporate clear pathway, optimize shelving and automation technologies like warehouse management system. क्या हो रहा है भाई, effective layouts incorporate clear pathway. उससे क्या हो रहा है, एक properly clear pathway उसको मिल रहा है, optimizing shelving भी properly हो रही है and automation technologies, एक सॉफ्टवेयर जिसको we can say that warehouse management system, वो भी क्या हो रहा है, उस पर वर्किंग कर रहा है. किसके ऊपर अच्छे ज्यादा वर्किंग करेगा, वेल प्लान. ठीक है, I'm just repeating the word that is a well planned. We're talking about well planned warehouse. Why? We are talking about the warehouse layout and design. ठीक है,
Now we have to talk about the importance of the warehouse layout design. Okay, what is the importance के warehouse की importance क्या है? What it say? Safe and well planned layout prevent accident and ensure regulatory compliance. के उसमें क्या होगा, आपकी जो भी incident फैक्टर्स होंगे एक्सीडेंट के कम से कम होंगे, आपकी जो भी कंप्लायंस की जो भी रेगुलेटरी होगी प्रॉपर्ली मेंटेन होगी, ठीक है। सेकंड बात कर रहा है फास्ट पैकिंग एंड शिपिंग लीड टू क्विकर ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सेकंड बात क्या कर रहा है, आपके पास जो भी फास्टर पैकिंग होगी, शिपिंग होगी, पैकिंग होगी, लीड टू क्विकर ऑर्डर फुलफिलमेंट, आपकी जो भी ऑर्डर फुलफिलमेंट हो रही होगी ऑर्डर की, क्या हो रही होगी, प्रॉपर हो रही होगी, और से क्या होगा, बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगी। थर्ड बात कर रहा है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एनहांस इन्वेंटरी एक्यूरेसी एंड रिड्यूस स्टॉक डिस्क्रिपेंसीज। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एनहांसिंग इन्वेंट्री एक्यूरेसी, आपकी जो भी चीजें होगी प्रॉपर अगर इन्वेंट्री होगी तो उसमें क्या होगी चीज, एक्यूरेसी के चांसेस ज्यादा होंगे, एंड रिड्यूस स्टॉक डिस्क्रिपेंसीज, और जो भी आपके डिस्क्रिपेंसी, जो भी एरर, जो भी इश्यूज डिस्क्रिपेंस आ रहे हैं, डिस्क्रिपेंट हो रहे हैं, तो उसके चांसेस कम होंगे अगर आपकी प्रॉपर इन्वेंट्री होगी, प्रॉपरली होगी, तो उससे क्या आपके स्टॉक की डिस्क्रिपेंसी एरर चांसेस कम से कम होंगे। एफिशिएंट वेयरहाउस लेआउट ऑप्टिमाइज स्पेस यूटिलाइजिंग यूटिलाइजेशन एंड रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट। आपका जो भी वेयरहाउस उसका लेआउट होगा, ऑप्टिमाइज होगा, अच्छा होगा, उसमें क्या होगा, स्पेस यूटिलाइजेशन एंड रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट, तो क्या होगा, तो उसके साथ साथ उसके फायदा क्या होगा, उसके पास जो भी कॉस्ट होगी कम से कम लग रही होगी, आपका एफिशिएंट अगर वेयरहाउस होगा, लेआउट इसका डिजाइन होगा, ऑप्टिमाइज स्पेस यूटिलाइजेशन, तो प्रॉपर्ली चीजों की जगहों को यूटिलाइज कर रहा होगा, चीजें यूटिलाइज हो रही होंगी प्रॉपर्ली, जगह पे शेल्फिंग पे लगी हुई होंगी, रैक्स पे लगी हुई होंगी, उससे क्या होगी, स्टोरेज, रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट, जो आपकी क्या कॉस्ट बचेगी, ठीक है। कैसे बचेगी, लाइक के आप एक जगह पे, एक मिसाल है, यू कैन सी द पिक्चर, एक जगह पे यू कैन पुट और मोर थिंग्स ओवर हियर, लाइक इधर स्पेस बच रही है तो यू कैन पुट मोर थिंग, आपको दूसरी स्पेस देने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे क्या हो रहा है आपके पास, आप इधर ही सारा कुछ मैनेज कर सकते हो और चीजों को पुट कर सकते हो, अगर आपकी प्रॉपर्ली शेल्फिंग हुई हुई होगी, प्रॉपर्ली चीजें बैलेंस में रखी होगी, एज यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। यू डोंट हैव टू बाय अनदर रैक, तो उसके लिए आपको अलग जगह परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि एवरी प्लेस हैव देयर ओन कॉस्ट, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द की फैक्टर अफेक्टिंग द वेयरहाउस लेआउट डिजाइन, व्हाट आर द की फैक्टर्स, स्पेस यूटिलाइजेशन, flow of goods, safety and compliance, scalability. Space utilization सेम है, मेक द मोस्ट अवेलेबल स्पेस व्हाइल कीपिंग गुड्स इजी टू एक्सेस, ज़्यादा स्पेस बचेगी, स्पेस यूटिलाइजेशन होगी, ठीक है। फ्लो ऑफ गुड्स इंश्योर स्मूथ मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री टू अवॉइड डिलेस, फ्लो ऑफ गुड्स, आपका फ्लो क्या होगा, प्रॉपरली होता रहेगा, फ्लो में रहेगा, आपको जो भी आपकी स्टोरेज होगी इन्वेंट्री की, उसमें उससे क्या होगा फायदा, आपके पास इन्वेंट्री टू अवॉइड डिले, जो आपके इन्वेंट्री को पिक करने में, उसको ढूंढने में आपकी अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं होगी, स्मूथ फ्लो नहीं होगा, फ्लो ऑफ गुड्स प्रॉपरली नहीं होगा, तो आपकी इन्वेंट्री कैसे होगी, अगर आपकी इन्वेंट्री मैनेज होगी तो आपके पास फ्लो ऑफ गुड्स प्रॉपरली होता रहेगा, ठीक है। अगर मैनेज है तो आपके पास कोई डिले नहीं आएगा, स्मूथ वेव के अंदर आपकी फ्लो ऑफ हो रहा है, ठीक है, गुड्स का। सेफ्टी एंड कंप्लायंस, फॉलो इंडस्ट्री रूल्स टू कीप वर्कर्स एंड गुड्स सेफ, कैसे, क्या, फॉलो इंडस्ट्री रूल्स, सेफ्टी एंड कंप्लायंस, कंप्लायंस लाइक वही जो रूल्स एंड रेगुलेशन और सेफ्टी के ऊपर आप वर्किंग करोगे तो कीप वर्कर्स गुड सेफ, और आपके क्या होंगे, आपके वर्कर्स जो भी प्रॉपरली एक तो अच्छे से काम कर सकेंगे और उनके सेफ रहेंगे, क्योंकि वेयर हाउस के अंदर वर्कर्स की एक मेन थिंग है कि उनके ऊपर कोई चीज़ गिर ना जाए या उनको लग ना जाए, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कोई चीज़ उनके ऊपर से गिर गई तो दे कैन डाई ऑन द स्पॉट, ऑन स्पॉट मर जाएंगे, ठीक है। उनके लिए एक सेफ्टी का चांसेस ज़्यादा, उनका अच्छे से अच्छी किया जाए, सेफ्टी एंड कंप्लाइंस रूल्स को रेगुलेशन को प्रॉपर्ली वहाँ मेंटेन रखें, ठीक है। स्केलेबिलिटी, डिजाइन द वेयर हाउस टू हैंडल फ्यूचर ग्रोथ एंड चैलेंजेस चेंजेस, फ्यूचर एंड ग्रोथ चेंजेस, इस वेयर हाउस को इस तरीके से लाइक यू कैन डिजाइन इट कि आपको जो भी इसके अंदर आपकी कैपेसिटी आपकी ऐसी हो कि आपको फुलफिल कर सके हो, और यू कैन टेक मोर ऑर्डर्स, तो जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, फ्यूचर में आपके पास कस्टमर सेटिस्फेक्शन की वजह से आपके पास ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होने की वजह से आपके पास यू कैन हैंडल मोर वेयर हाउसेस, आप और भी उसके अपने बढ़ा सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है। डिजाइन वेयर हाउस टू हैंडल फ्यूचर ग्रोथ, आपका फ्यूचर में क्या ग्रोथ होगा, किस तरीके से, अगर आप चीज़ों को मैनेज प्रॉपर्ली, इन्वेंट्री को, वेयर हाउसिंग चीज़ों को मैनेज करते हो, तो आपके पास और कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, कैसे,
आपके पास स्मूथ फ्लो होगा, कस्टमर का जो टाइम डिले कम से कम होगा, स्पेस यूटिलाइजेशन आप प्रॉपर्ली कर रहे होंगे, आपके पास सेफ्टी एंड कंप्लायंस की चीजें सारी की सारी होंगी, तो आपके पास स्केलेबिलिटी भी एक आपका फैक्टर होने की वजह से आपके पास फ्यूचर ग्रोथ में आएगी. सही. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ वेयर हाउस लेआउट, हमारे पास ओवर हियर वी हैव अराउंड 1 2 3 4 5 U shape layout, I shape layout, L shape layout, grid layout and cross docking layout. We have already discussed this, I think, in chapter number 4 or chapter number 3, the cross docking. Let's see U shape layout कि होता है किस तरीके से. You can see in the picture over here. One side is the receiving side and the second side is the you can say इनपुट एंड आउटपुट. यहाँ से रिसीव हो रहा है, यहाँ से लोड हो रहा है. सही है. एक जगह से स्टॉक रिसीव आ गया, एक तरह से ये तो लोड हो रहा होगा. कोई एक साइड हमारे पास लोडिंग होगी, एक साइड हमारे पास क्या होगी, रिसीविंग साइड होगी. सेकंड वी हैव एल आई शेप ओवर हियर. यू कैन सी ओवर हियर लाइक हमारे पास सिंपल रिसीविंग है और हमारे पास लोडिंग, और ये एक तरीके से लोडिंग हो रहा है, सेकंड से वो हो रहा है रिसीविंग हो रहा है. यू कैन सी ओवर हियर हमारा L shape हो रहा है. L shape, what L shape says to us over here, this is the L shape warehouse. इसके अंदर one side is receiving and second side is shipping. Okay. Third we can fourth is the grid layout. Over here this is a grid layout. This is the example of the grid layout. हमारे पास especially the grid layout is followed by the इम्तियाज कि यहाँ पे उनके पास एक grid, second grid, यहाँ पूरा एक आपने सामने ग्रिड लगी हुई है, यहाँ पे इसके पूरा फ्लोर ऊपर से टॉप तक भरा हुआ है, फिर सेकंड का ग्रिड, थर्ड ग्रिड, फिर के सामने पैरेलली. तो ये चीजें क्या हो रही हैं, यहाँ पे ग्रिड फॉर्म में लगी. दिस इज द पिक्चर ऑफ द ग्रिड लेआउट. ठीक है. दिस इज ऑल. एंड क्रॉस डॉकिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि लाइक जो भी शिपमेंट आके रुकती है, फॉरेन स्टॉक्स का उतरता है एंड लोड इनटू द डिफरेंट लोडिंग कार्स और लोडिंग ट्रक्स. ओके. दैट्स कॉल्ड द क्रॉस डॉकिंग लेआउट. her design principle के किस principles के they are working on it. Flow efficiency and ergonomics, cost efficiency, compliance and regulation, sustainability, scalability, space utilization, safety and security, technology integration. You can just also read that flow efficiency, optimize product movement path. Second, ergonomics, it designed for worker comfort and productivity. Third is cost efficiency, minimize operational and storage costs. Fourth, compliance and regulation, follow industry and legal standard. Okay. Sustainability, implement co-friendly practices. Scalability, design for future expansion need. Space utilization, maximize storage capacity efficiently. Safety and security, prioritize worker and inventory safety. लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, यूज ऑटोमेशन एंड स्मार्ट सिस्टम. ठीक है. ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं. हमारे पास वेयर हाउस डिजाइन प्रिंसिपल्स, ये हमारे पास ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 9 प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास वेयर हाउस डिजाइन के. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के वेयर हाउस के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से होती है. जस्ट इन टाइम, everyone know what just in time, like to reduce cost, reduce storage cost but require precise demand. लाइक हमारे पास क्या हो रहा है, जस्ट इन टाइम से डिमांड फोरकास्टिंग, जो भी हमारे पास ऑन टाइम डिमांड हो उसके हमारे पास क्या हो रहा है, जस्ट इन टाइम के मुताबिक इसको फुलफिल हो रहा है. एबीसी एनालिसिस, कैटेगराइज इन्वेंट्री बेस्ड ऑन द वैल्यू एंड यूजेज. के एबीसी कैटेगरी के अंदर हमने हमारी जो भी इन्वेंट्री को कैटेगराइज कर दिया और उसको हम उसके मुताबिक यूजेज करें. ए कैटेगरी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, बी इज मॉडरेट, सी इज द लेस्ट. ओके. क्रॉस डॉकिंग, व्हाट हैपन विद दिस, मिनिमाइज स्टोरेज नीड बाय इंटरमीडिएट शिपमेंट. इससे क्या होता है हमारे पास, मिनिमाइज स्टोरेज. इसमें हमारे पास जो चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 3 और 2. इससे क्या, मिनिमाइज स्टोरेज, हमारे पास स्टोरेज कम से कम होता है एंड नीड इंटरमीडिएट शिपमेंट, फॉरेन शिपमेंट हम लोग करवाते हैं इसको. सेफ्टी, स्टॉक मैनेजमेंट, व्हाट इट सेज, इंश्योर बैकअप सप्लाई टू प्रिवेंट स्टॉक. सेफ्टी स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है, बैकअप होता है टू प्रिवेंट स्टॉक आउट. बस कितना बैकअप पड़ा हो कि हम जो भी स्टॉक आउट या हमारे पास स्टॉक खत्म ना हो जाए. सही है. That's it. अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न वेयर हाउस. के टेक्नोलॉजी का मॉडर्न वेयर हाउसिंग में क्या रोल होता है. I've highlighted the few things. You can just also see. Just first have a quick view what it says to us. Technology plays a crucial role in warehouse design by improving efficiency, accuracy, and cost saving. Okay, we all know that the technology का एक बहुत crucial important हमारे पास एक रोल है किस चीज में, इंप्रूविंग करने में, एफिशिएंसी करने में और एक्यूरेसी के लिए एंड कॉस्ट सेविंग. चाहिए. few of the thing I have highlighted over here. First, automation and robots. क्या करो तो हमारे पास स्पीड अप ऑपरेशंस,
reducing manual labor. Automation and robots, you can see in the picture, these are the robots. Automation, खुद ब खुद हमारे पास automate robots को हमने design कर दिया, उसको हमने train कर दिया. सही. This is the automation and robots. Barcode and RFID. Barcode and RFID, like RFID वो जो scan करके चीज़ों को detect कर लेती है. I don't know, I think I haven't put the picture away, but you can just search in the Google what RFID is. That is the radio frequency identification. It's a full form of RFID system. Help track inventory in real time, minimizing errors. इससे क्या होता है, हमारे पास जो भी currently मौजूद है हमारे पास सिस्टम जो अवेलेबल है फ्लोर के ऊपर जो या कहीं भी वेयर हाउस के अंदर हमारे पास, वो हमारे पास RFID के अंदर चीज़ें सेव हुई भी होती हैं. अच्छा, मिनिमाइजिंग इससे क्या होता है, एरर्स कम से कम एरर होते हैं और रियल टाइम में जो चीज़ हमारे पास मौजूद है उसके बताते हैं हमें. IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स, जो भी इससे क्या होता है हमारे पास मॉनिटर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड स्टॉक लेवल और बेटर स्टोरेज मैनेजमेंट. जो भी टेम्परेचर सेंसर्स का मतलब काम क्या होता है, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को और जो भी स्टॉक लेवल्स को सिंपल उसको मॉनिटर करना. अच्छा, augmented reality AR, what are they? You can see over here, these are the augmented reality AR. These are the augmented reality AR. What the function? Assist workers in locating item quickly, improving order fulfillment. Like उनको पता है कि इससे अगर you can see over here, अगर इससे पता चल जाएगा कि यार स्टॉक हमारे पास, ये स्टॉक अगर ए स्टॉक हमारे पास इधर रखा हुआ ऑगमेंटेड, हमने इसको पहन के हमने मतलब एक तरीके से यू कैन इमेजिनरी पिक्चर को आप इसके अंदर इमेजिनेशन के मुताबिक आप चीज़ों को यहाँ पे वर्किंग कर सकते हो. तो दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी AR. ठीक है, ऐसे वर्कर हेल्प करता है वर्कर्स को, सही, इंप्रूविंग द ऑर्डर फुलफिलमेंट जो भी ऑर्डर आ रहा है उसको फुलफिल करने में हेल्प आउट कराता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का काम ही जो है आजकल जो चल पूरा सब जगह रहा है, एनालाइज डेटा एंड ऑप्टिमाइज वेयरहाउस लेआउट एंड इन्वेंटरी प्लेसमेंट. ठीक है, आपको जो भी डेटा को एनालाइज करने में AI बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट कर रहा होता है. ड्रोन्स आर यूज्ड फॉर द फास्ट इन्वेंटरी चेक एंड सर्विलेंस. ये लाइक आपके ड्रोन्स आ गए चेकिंग करने के लिए और सर्विलेंस, आपकी सिक्योरिटी को और जो भी चीज़ों को सर्विलेंस करने में. इवन के Amazon use this drones in Dubai for giving the parcel to the customers. ठीक है, एक उनको पार्सल के लिए इस्तेमाल हो रहा है. Drones are used faster से ये check surveillance. अच्छा, conveyor system and automated guided vehicles. Conveyor system you can see over here, these are the conveyor system और automated guided vehicles जिसको हम बोलते हैं AGV, automated guided vehicles. These are the AGV, enhanced material handling, चीज़ों को हैंडल करने में इनको हेल्प आउट कर रही होती है. नेक्स्ट, conveyor system and automated conveyor system. Everyone know that conveyor system जो भी like you can see over here, conveyor system जो भी conveyor belt के ऊपर चीज़ें चल रही होती हैं. Even you can see in the airport कि जो भी आपका सामान आ रहा होता है they put on the conveyor belt. ठीक है. अच्छा जी, enhanced material handling. सही. Customer cloud based warehouse management system जो आपके पास होता है WMS. क्लाउड बेस जो भी आपका इन्वेंट्री जो भी चीज़ हो रही है आपका क्लाउड बेस, आपका सॉफ्टवेयर बेस, आपका सारी चीज़ें इसमें मैनेज हो रही है. BC इसका WMS को बोलते हैं. क्लाउड बेस हमारे पास चीज़ होती है वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम. अच्छा, स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होता है. कंपनीज लाइक Amazon, Walmart यूज दीज टेक्नोलॉजीज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट. इससे क्या हो रहा है, हमारे पास एफिशिएंसी बढ़ रही है और कॉस्ट कम हो रहा है. तो ये हम सारी क्या बात कर रहे हैं, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न वेयर हाउस, कि टेक्नोलॉजी का मॉडर्न वेयर हाउस के अंदर क्या यूजेज है. तो ये सारी चीज़ें थी, तकरीबन ऑलमोस्ट 6 to 7 चीज़ें हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हमने बात करी है. एंड दिस इज ऑल फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर 5. So I hope you have learned a lot of things and this is the most important chapter. So just have a good view, a quick view and a good overview and have a good learning from this chapter. So just try to make this chapter more easier for you by making the short video and try to make this chapter short as compared to the real chapter that was in your university slide. So I hope you enjoyed and till then, Allah Hafiz, take care, bye bye, see you in the next video.